Good morning to one and all. We now begin with our first panel discussion for the day with the theme Youth and Mission India at the rate 2047. This panel discussion will look at the deeper connotations, circumstances and contextuality of what we mean by the term acquiring developed nation status by 2047, as well as the strategies to involve the youth in policy planning, educational curricula, industry interface and governance formats. We invite to the stage our esteemed panelists for this session. Flowing beard, जबरदस्त mustache, तिलक लगा करके बैठे हैं आदित्य सेठ जी. He is chartered accountant by profession. He has been in fund services for more than 30 years with experience in international organization in the Europe, Caribbean and US. And I tell you, his profile is very long. I can't read the full. First in Bharat, he has with his team implemented path-breaking strategy related to deploying Six Sigma and PERT CPM techniques for the first time in fund accounting industry itself. Sir, मैं नहीं पढ़ने वाला आपकी पूरी की पूरी, बहुत लंबी है, sorry. And he has ये सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जी कॉर्पोरेट की ज़िंदगी में हम सब करते रहते हैं, मगर मेरे ख्याल से जो मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में मैंने जो मुझे नियुक्त किया गया था वो सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अग्रतला त्रिपुरा में बहुत काम किया इन्होंने. ही इज अ फ्रीक्वेंट स्पीकर इन द नेशनल हिंदी चैनल प्रोग्राम्स एंड ए प्रोलिफिक राइटर. ग्रेट, आई टेल यू, मजा आ गया. नाउ मे आई रिक्वेस्ट आदित्य जी to please go ahead and enlighten the audience. नमस्ते, वंदे मातरम. और जोर से, और जोर से, और एक बार. Do you all love your motherland? More, I need to hear. So then, now, very good. So now I will just repeat that in Hindi and say Namaste Sada Vatsale Matrubhumi. बोलो बोलो, Namaste Sada Vatsale Matrubhumi. So all that is told to us are very simple words, पर हम उसको अलग अलग रंग दे देते हैं. अगर आप उसका अर्थ जानो तो आपको लगेगा ये आपका हृदय के कितना करीब है. ओके, तो मंचासीन सभी व्यक्तिगण को मेरा हार्दिक और सादर प्रणाम. सभी विद्वान है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 5 से कम बोलूँगा और बाकी मुनाफा आपका होगा. तो पहला चीज़, आप लोग स्टूडेंट्स हो तो मैं एक गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि आप भारत से भागे हुए भारतवासी मत बनना. BBB. Okay? So why am I saying this? Because world over, the opportunities lies in this country. And while you can even take an EMI and visit places abroad, but remember the action point is in this country. जो सुनहरा भविष्य है वो यहाँ है और कहीं नहीं. तो आप जाओगे, देखोगे, और हमारे जैसे मूर्खता मत करना. 30 देश जाके हमें ये ज्ञात हुआ कि यहाँ ही सबसे अच्छा है, तो मूर्खता को सीमित रखना चाहिए हमें. So anyway, so the single point that I want to tell you is that the future lies here. Work for this country, you will make money, you will carve out your wealth. यहाँ पे आपको अवसर मिलेंगे, आपको कोई कमी भविष्य में इस देश से नहीं होगा. 2047 में जैसे हम हो जाएंगे उसका आज हमें कल्पना करना पड़ेगा. तो ये जो मंच आज बुलाया गया है ये एकदम मैं कहता हूँ सही है, क्योंकि आगे का भविष्य देखने के लिए कल्पना चाहिए, इमेजिनेशन चाहिए, पैशन चाहिए और सबसे बड़ा विश्वास चाहिए. आप लोगों का जो पीढ़ी है बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि इस पीढ़ी में आप लोगों को एक माहौल मिला है जिसमें ये सपने से यथार्थ हो जाएगा. फ्रॉम ड्रीम्स टू रियलिटी.
You know, the gap between dream and reality in this generation is going to be very, very little. मतलब जो आप चाहोगे वो होगा, provided आप उसके लिए काम करोगे. So, you know, these are the very little words with which I want to leave you with. You are in an amazing era where the focus is going to be upon you. I mean, if you realize, I took a photograph of you all. Normally वहाँ पे बैठे हुए दर्शक फोटोग्राफ लेते हैं, मगर ये उल्टा है, क्योंकि भविष्य में जो लाइट होगा वो आप लोगों के ऊपर होगा. ये सोचना जैसा आपका परिवार वैसा ही होगा सरकार. It's no different. Earlier they used to say यथा राजा तथा प्रजा. Now it is ulta. Now it is यथा प्रजा तथा राजा, meaning just as the citizens are, so will the governance be. So therefore, please understand that you have such a major role to play. It is not without a reason that you have been born in this country. I leave you with these words, Vande Mataram. Thank you very much. I'll request Aditya ji. हिंदुस्तान में आजकल टीवी जब देखो पिछले 1-2 दिन से, तो बहुत बड़ी बातचीत चल रही है वो जनगणना के बारे में, बेस्ड ऑन कास्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स. नाउ अगर हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है तो क्या ये जात पात के बेस के ऊपर जो लोग, कुछ लोग वोटिंग वगैरह करते हैं, तो क्या हिंदुस्तान वास्तव में विश्व गुरु बन पाएगा? कि अगर आज भी इतने 2023 के अंदर भी हम जात पात के बंधनों के साथ जकड़े रहेंगे, कांट वी थिंक दैट वी आर ऑल इंडियंस, सब भारतवासी हैं, तो ये वोटिंग पैटर्न शैटर्न ये 2047 तक कैसा चलने वाला है, इसके बारे में आपने विचार थोड़े बताइए कि व्हाट शुड वी बी डूइंग इट. जेटली जी, इसका उत्तर देने के लिए मैं आज से 25 साल आगे की भी मैं आपको एक मानचित्र बताऊंगा. जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो ही हमें समझ में आएगा. मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ओके. तो पहला चीज़ है कि इन्होंने जो जनगणना की है, ये जनगणना नहीं है, ये सिर्फ एक सर्वे है. पॉइंट नंबर 1, सर्वे जनगणना नहीं बनता, उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है, ये कोर्ट पे जाएगा और इसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा. पॉइंट नंबर 1. दूसरा, अगर जनगणना भी कर लेते हैं, इन्होंने लोगों का जो जनमानस है ये उन्होंने समझा नहीं है. क्योंकि आज का जो युवा, और मैं कल की ही एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं भोपाल गया था और मैं टैक्सी ड्राइवर से रेगुलरली बात करता हूँ क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान मिलता है. तो टैक्सी ड्राइवर मेरे से कहता है, युवा है, वो कहता है कि मध्य प्रदेश में चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने, बीजेपी आएगी. ये उसका कहना था. And so he says it doesn't matter as long as you have a strong, in effect, you have a strong effective governance model. तो ये लोग, इनको जो सोच है ये आज से 10, 15, 20 साल पहली वाली सोच है, इन्होंने जाना नहीं है. चाहे वो कुछ भी करे, आज का युवा इसने ये ठहर लिया है कि प्रगति के ऊपर वोटिंग होगा और ना कि जात पात के ऊपर. तो एक तो हम मान लें कि ऐसा नहीं होगा. आगे जाके क्या होगा? आज से 25 साल आप लोग पॉलिटिक्स में, राजनीति में आप लोग भाग लोगे. राजनीति जो है वाइड स्प्रेड होगा. एमपीज और एमएलएज का जो आज का पोजीशन है वो डी ग्लैमरस किया जाएगा, जैसे सिंगापुर में होता है. जी, सिंगापुर में आप कोई भी एमपी एमएलए को मतलब आप रास्ते पे देख सकते हो, चल रहा है. और उसी का काम आज हो रहा है, आप लोगों को शायद दिखता नहीं है. मोदी जी का ऐसा प्लान है कि ये जो कृषि भवन, उद्योग भवन, वो भवन, ये भवन सबको हटा के एक स्काईस्क्रेपर में डाल दिया और सब ऑफिसेज वहाँ पे आ गए. वो दिन भी ऐसे आएंगे जब सबके बंगले निकल जाएंगे, सबको एक बिल्डिंग में डाला जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप सब ये बिल्डिंग में एक एक कमरे में, एक एक फ्लैट में रह जाना. ये सब मतलब आने ही वाला है. मतलब, और दूसरा चीज़ ये होगा कि आज का युवा जो कल मतदान करने जाएगा या मतदान आज भी कर रहा है, वो सोचेगा कि 3 P's के बारे में सोचेगा: परफॉर्मेंस, पैशन एंड प्रिसिशन. तो ये सोचेगा कि
हमारे जो सांसद है या हमारे जो विधायक है उसने हमारे लिए क्या किया है, व्हाट आर दे डूइंग फॉर अस, आर दे डूइंग व्हाट दे आर सेइंग। सबका स्कोर कार्ड निकलता है, आज भी है, पोर्टल पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हो कि कौन से एमपी ने कैसा प्रश्न पूछे हैं संसद में या फिर विधान भवन में, उनका उत्तर कैसा हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वगैरह है। और जैसे ही हम रोटी कपड़ा मकान से उभर कर आएंगे तो आप लोग ये जानोगे कि यू विल टेक पार्ट मोर इन सिविक लाइफ। तो मैं एक सभा में संबोधित कर रहा था और किसी ने कहा अभी तो हम अच्छा कर रहे हैं मगर क्या गारंटी है कि कल जाके सही होगा। तो मैंने कहा कि जब तक, और मेरे बात बहुत गौर से सुनिएगा, जब तक आप वोटिंग बूथ में जाते हो अपने होश और आवाज़ और प्रगति के तरफ वोट करते हो, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं सकता। तो जनता जनार्दन आपके हाथ में है। अपने हाथ को मल के ये मत कहना कि हमारे ऊपर शासन करने वाले सही है नहीं सही है, वो तो सिर्फ आपके रिफ्लेक्शन है। तो अगर आप सिविक लाइफ में भाग लोगे, राजनीति में भाग लोगे, अपने सांसद या विधायक से प्रश्न पूछोगे, या जब आज भी जब नए एक्ट्स आते हैं उनका कंसल्टेशन पेपर डाला जाता है, हम में से कितने लोग उस पर टिप्पणी देते हैं, कमेंट करते हैं, आपको करना है। अगर ये सब हुआ तो जात पात कोई मायना नहीं रखेगा। जल्दी से जल्दी अपना वोटर कार्ड बनाएं, उसके बाद मत कहना कि राजनीति सही नहीं है और गवर्नेंस सही नहीं है। आपने अपने काम नहीं किया है और जिस दिन मतदान होगा उस दिन मैं गुजारिश करूंगा लोनावाला कंडाला जो भी हो मत जाइए। वो आपके लिए हॉलिडे नहीं है, वो आपका भविष्य के सुनहरे दिन है। उस भविष्य के लिए एक बिरयानी या जो भी वो जो फ्रीबी देते हैं, जो रेवड़ी देते हैं, उसके लिए आपके भविष्य को खराब मत करिएगा। आज आप ये लेके चलो, जब तक आप वोट नहीं दोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आपका मतदान सभी समस्याओं का समाधान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपने कॉलेज को, अपने मोहल्ले को, अपनी बस्ती को एकदम साफ रखेंगे। ट्रेन में जा रहे हैं तो वहां पर भी कचरा नहीं फेंकेंगे। तो आज से ये प्रण लेते हैं सभी लोग प्रण लेते हैं। हिंदुस्तान को साफ रखेंगे, मुंबई को साफ रखेंगे, अपने मोहल्ले को साफ रखेंगे, कॉलेज को साफ रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये इतना सरल है कमांडर जी, मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा। मैंने खुद ब खुद, मतलब इसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद ब खुद एक अभियान चलाया था, थूकू नका। सबसे सरल, थूकू नका। लोग इतने आते जाते सड़क पे, और अगर किसी ने थूक भी लिया तो बहुत विनम्रता से हम उनको कह सकते हैं कि भाई थूको मत, क्योंकि थूकोगे तो बीमारी फैलेगी। और मैंने ये देखा कि 99% लोग झगड़ा नहीं करते हैं, मान लेते हैं। सिर्फ अच्छी तरह से उनको कहना, बस यही कहोगे तो सब कुछ साफ सुथरा होगा। वैसे भी जब से ये अभियान चला है केंद्रीय सरकार की तरफ से, काफ़ी साफ सुथरा हो गया है भारत। Thank you so much to our panelists as well as our moderator of the first session. I invite up on stage Dr. Shalini Sinha, Vice Principal of KC College, to please felicitate our panelists and our moderator for panel 1. Mr. Aditya Seshadrinathan. Our moderator for the session. और हम तुरंत रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।